Hi friends, once again welcome back on our YouTube channel. In the current lecture of statistical mechanics, we will discuss about Bose-Einstein statistics. So, here we start with Bose-Einstein statistics. Now, Bose-Einstein statistics, it is applied to boson or Bose particle, that is indistinguishable particle with integral spin. तो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में पार्टिकल का क्लासिफिकेशन बताया था और वहां पर हमने बताया था कि क्वांटम मैकेनिकल केस में पार्टिकल दो टाइप के होते हैं। एक वो पार्टिकल है जिनका स्पिन इंटीग्रल है और दूसरा वो है जिनका इंटीग्रल हाफ स्पिन होता है। सो बोथ पार्टिकल और बोसोन आर दैट पार्टिकल विच हैव इंटीग्रल स्पिन। So Bose-Einstein statistics are applied to boson or Bose particle, that is indistinguishable particle with integral spin. Here particles are indistinguishable from each other and each cell of ith quantum state may contain 0, 1, 2 up to ni particles. It means there is no limitation of the particle in any quantum state. Total number of particles of system remain constant. So n is equal to sigma ni equal to constant. Also, sum of energies of all the particles in the different groups taken together, that is total energy of the system remain constant. So total number of particles हमारे constant है and total energy हमारी constant है. So E equal to sigma ni ei equal to constant. Ni is the number of particles in ith state and ei is the energy of ith quantum state. So total energy of the system remain constant, that is E equal to sigma ni ei equal to constant. Now we consider a system of n indistinguishable identical particles with integral spin. अब हम एक ऐसा सिस्टम कंसिडर करते हैं जिसमें n इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल पार्टिकल है और इनका स्पिन इंटीग्रल स्पिन है। These particles be divided into quantum groups और levels. इन पार्टिकल्स को हम क्वांटम ग्रुप या लेवल में डिवाइड करते हैं such that energy levels E1, E2, EI having degeneracies G1, G2, GI and the occupation number or the number of particles are N1, N2, Ni. So E1 एनर्जी लेवल की डिजेनरेसी G1 और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स N1, E2 एनर्जी लेवल की डिजेनरेसी G2 and number of particles N2. In the same way, the number of particles in energy level EI is GI and the degeneracy of this energy level is GI. Now, here we are showing energy levels. So, लास्ट वाला जो एनर्जी लेवल है वो हमारा ith लेवल है and here GI सब लेवल with GI -1 partitions are shown. So यहां पर हमने GI सब लेवल दिखाए हैं और इन GI सब लेवल के लिए हमने GI -1 partitions किए हैं. Here we consider a box, divide it into GI sections and distribute particles Ni among them. So यहां पर हमने एक बॉक्स लिया है, इस बॉक्स को हमने GI सेक्शन में डिवाइड किया है और इन GI सेक्शंस में हम Ni पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. So there are GI ways to choose the sequence of compartment. अब ये जो हमने कंपार्टमेंट शो किए हैं, इन कंपार्टमेंट को चूज करने के लिए हमारे पास में GI ways होंगे. After it remaining GI-1 compartment and Ni particles, that is total Ni plus GI-1 particles can be arranged by. So GI compartment can be chosen by GI ways and एक कंपार्टमेंट हमने चूज कर लिया है. So remaining
gi minus 1 compartments are there and there are ni particles, that is total ni plus gi minus 1 particles can be arranged by factorial ni plus gi minus 1. So gi minus 1 कंपार्टमेंट में ni पार्टिकल को अगर आपको अरेंज करना है, मीन्स टोटल आपको ni प्लस gi माइनस 1 पार्टिकल्स को अरेंज करना है, तो उसके लिए वेज क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल ni प्लस gi माइनस 1. सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सो डिस्ट्रीब्यूशन के टोटल वेज क्या होंगे, gi इंटू फैक्टोरियल ni प्लस gi माइनस 1. नाउ पार्टिकल्स आर इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर. तो यहां पर हमारे पास में जो पार्टिकल्स हैं that are indistinguishable from each other. So the distribution derived from one another by permutation do not produce different state. इसलिए अगर हम पार्टिकल्स के आपस में परमुटेशन के कारण अगर डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव करें तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होंगे ये डिफरेंट स्टेट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, इसमें रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा. सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आर gi factorial ni plus gi minus 1 divided by factorial gi factorial ni, and this is equal to gi factorial ni plus gi minus 1, and इस factorial gi को हमने gi into factorial gi minus 1 लिख दिया है और ये factorial ni as it is. अब यहां पर इस gi से ये gi कैंसिल हो जाएगा, so number of ways will be factorial ni plus gi minus 1 divided by factorial gi minus 1 into factorial ni. So total number of ways or required number of ways will be this one. So total number of ways in which n1 particles in the state of energy E1, n2 particles in energy state E2 and so on. So अगर हम वो नंबर ऑफ वेज निकालें जिसमें E1 एनर्जी लेवल में n1 पार्टिकल, E2 एनर्जी लेवल में n2 पार्टिकल, इसी टाइप से EI एनर्जी लेवल में Ni पार्टिकल हो, देन so G equal to factorial N1 plus G1 minus 1 upon factorial N1 factorial G1 minus 1 into factorial N2 plus G2 minus 1 divided by factorial N2 factorial G2 minus 1 into and so on. So ये क्या हो जाएगा, G equal to pi I factorial Ni plus Gi minus 1 divided by factorial Ni factorial Gi minus 1, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लिकेशन में है और मल्टीप्लिकेशन में हम पाई लगाते हैं, तो जो काम हमारा एडिशन में सिग्मा करता है वही मल्टीप्लिकेशन में पाई करता है. सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज G इक्वल टू पाई आई फैक्टोरियल Ni प्लस Gi माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल Ni फैक्टोरियल Gi माइनस 1. According to the postulates of a priori probability of eigenstate. So eigenstate की जो प्रायोरी प्रोबेबिलिटी की पोस्टुलेट है उसके अकॉर्डिंग, so omega equal to pi I factorial Ni plus Gi minus 1 divided by factorial Ni factorial Gi minus 1 into k. तो यहां पर हमने एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया है. नाउ अगर हम इसका लॉग लें, सो लॉग ओमेगा इक्वल टू, जैसे लॉग लोगे ये मल्टीप्लिकेशन हमारा एडिशन में चेंज हो जाएगा, इसलिए ये जो पाई है ये सिग्मा में चेंज हो जाएगा. सो यहां पर हमने लॉग m अपॉन n का फॉर्मूला लगाया है जो कि log m माइनस log n होता है. सो सिग्मा आई log ऑफ फैक्टोरियल ni प्लस Gi माइनस 1 माइनस log ऑफ फैक्टोरियल ni माइनस log ऑफ फैक्टोरियल Gi माइनस 1 प्लस log k. Now by using Stirling approximation, so Stirling approximation के अकॉर्डिंग अगर हम फैक्टोरियल x का log निकालें तो होता है x log x minus x. So this is our Stirling approximation. So log factorial x equal to x log x minus x. इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ni plus gi minus 1 log of ni plus gi minus 1 minus ni plus gi minus 1. इसी टाइप से ये हो जाएगा हमारा ni
log ni माइनस ni, और ये होगा gi माइनस 1 log ऑफ gi माइनस 1 माइनस gi माइनस 1। अब यहां पर ये नेगेटिव है, इसकी वजह से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहां पर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा ni प्लस जी आई माइनस 1 लॉग ni प्लस जी आई माइनस 1 माइनस ni प्लस जी आई माइनस 1 माइनस ni लॉग ni प्लस ni माइनस जी आई माइनस 1 लॉग जी आई माइनस 1 प्लस जी आई माइनस 1, और ये लॉग के अपनी जगह पर होगा। सो लॉग ओमेगा इक्वल टू सिग्मा आई ni प्लस जी आई माइनस 1 log ni प्लस जी आई माइनस 1 माइनस ni प्लस जी आई माइनस 1 होता, पर इस 1 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, सो दिस विल बी सिग्मा आई ni प्लस जी आई log ni प्लस जी आई माइनस ni प्लस जी आई, ये हो गया माइनस ni log ni प्लस ni, ये हो गया माइनस जी आई log जी आई प्लस जी आई, क्योंकि यहां पर भी ये जो 1 है ये जी आई के कंपेरिजन में बहुत कम होगा, इसलिए इसको भी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो माइनस जी आई लॉग जी आई प्लस जी आई प्लस लॉग के। सो जैसे आप यहां पर स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगाओगे एंड एन आई प्लस जी आई के कंपेरिजन में 1 को नेग्लेक्ट करेंगे एंड जी आई के कंपेरिजन में 1 को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। नाउ ये एन आई प्लस जी आई और यहां पर माइनस एन आई प्लस जी आई तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा log ओमेगा इक्वल टू सिग्मा आई ni प्लस जी आई log ni प्लस जी आई माइनस ni log ni माइनस जी आई log जी आई प्लस log k, तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। और अगर हम इसका डिफरेंशियल लें सो log ओमेगा का डिफरेंशियल डेल्टा log ओमेगा, अब इसका डिफरेंशियल करो सो सिग्मा आई, पहले हम ni प्लस जी आई को कांस्टेंट मान लेते हैं, इसका करेंगे तो log ni प्लस जी आई का हो जाएगा 1 अपॉन ni प्लस जी आई, और इसका करोगे तो डेल्टा ni क्योंकि जी आई कांस्टेंट है, प्लस अब इसको कांस्टेंट मान लो सो log ni प्लस जी आई कांस्टेंट एंड ni प्लस जी आई का हो जाएगा डेल्टा ni। अब इसकी बात करें सो पहले आप ni को कांस्टेंट मानो और log ni का करो, सो माइनस ni log ni का हो गया 1 अपॉन ni डेल्टा ni। अब आप इसको कांस्टेंट मानोगे और इसका करोगे सो माइनस log ni डेल्टा ni। अब ये कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशियल 0, log k कांस्टेंट है इसका डिफरेंशियल 0, सो हमको डिफरेंशियल के बाद में ये वैल्यू मिल जाएगी। नाउ अब हम क्या करते हैं ni प्लस जी आई से ni प्लस जी आई कैंसिल कर दो, ni से ni कैंसिल कर दो, तो यहां पर क्या बचा डेल्टा ni और यहां पर माइनस डेल्टा ni, तो ये पूरा आपस में कैंसिल हो जाएगा। So delta log omega equal to sigma I log ni plus gi delta ni minus log ni delta ni, और इन दोनों में हम डेल्टा ni कॉमन ले लेते हैं, तो डेल्टा log omega equal to sigma I log ni plus gi minus log ni into delta ni, तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है, अब यहां पर आप log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन n कर दो, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा log ओमेगा इक्वल टू सिग्मा आई log ऑफ ni प्लस जी आई डिवाइडेड बाय ni इंटू डेल्टा ni, तो हमको ये मिल जाएगा। और अगर हम इसको उल्टा करें तो पावर नेगेटिव 1 होगी और वो पावर log के आगे आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा माइनस सिग्मा आई log ni upon ni plus gi into delta ni, so delta log omega equal to this one for maximum probability। अब ओमेगा हमारी प्रोबेबिलिटी है एंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए डिफरेंशियल हमारा 0 होना चाहिए, इट मींस डेल्टा लॉग ओमेगा इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए फर्स्ट डिफरेंशियल हमारा 0 होता है, सो फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेल्टा लॉग ओमेगा इक्वल टू 0, सो आप इसको 0 कर दो, सो दिस विल बी सिग्मा आई log ni अपॉन ni प्लस जी आई इंटू डेल्टा ni इक्वल टू 0, सो हमको ये इक्वेशन मिलेगी। नाउ अदर कंडीशंस आर, अब एक्स्ट्रा कंडीशन क्या थी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है एंड टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट है, सो अदर कंडीशंस आर
n equal to sigma ni equal to constant, it means total number of particles are constant, and E equal to sigma ni Ei equal to constant, it means total energy equal to constant. So अगर आप इसके डिफरेंशियल करोगे तो जीरो मिलेगा और इसके डिफरेंशियल करोगे तो भी जीरो आएगा. सो डिफरेंशियल कर देते हैं. सो डेल्टा एन इक्वल टू सिग्मा आई डेल्टा एन इक्वल टू जीरो और इसका डिफरेंशियल करोगे so delta E equal to sigma I Ei delta Ni equal to 0. Now we use Lagrange's method of undetermined multiplier. So जैसे आप Lagrange's method of undetermined multiplier यूज करोगे तो उसमें क्या होगा, ये जो इक्वेशन है इसको हम 1 से, इस इक्वेशन को अल्फा से और इस इक्वेशन को बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हमको क्या मिलेगा, सिग्मा आई log of ni upon ni plus gi plus alpha plus beta ei डेल्टा ni इक्वल टू 0. तो इसको हमने 1 से, इसको अल्फा से और इसको बीटा से मल्टीप्लाई किया और तीनों को ऐड कर दिया तो इक्वेशन हमको ये मिल जाएगी. सो सिग्मा आई log ni upon ni plus gi plus alpha plus beta ei into delta ni equal to 0. तो इक्वेशन हमको ये मिलेगी. नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है, बट डेल्टा ni इज आर्बिट्ररी. सो डेल्टा ni हमारा आर्बिट्ररी है तो इसको हटा दो. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिग्मा आई log ni upon ni plus gi plus alpha plus beta ei equal to 0 और log ni upon ni plus gi plus alpha plus beta ei equal to 0 और इसको आप राइट में ट्रांसफर करो. तो यहां से हमको क्या मिलेगा, log of ni upon ni plus gi is equal to minus alpha plus beta ei. ये क्या हो जाएगा, log of ni plus gi upon ni पावर -1. ये पावर आगे आ जाएगी तो माइनस लॉग ni प्लस ji अपॉन ni इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा ei. अब आप इस माइनस को कैंसिल कर दो. सो लॉग ni प्लस ji अपॉन ni इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ei. अब ni को आपको इससे भी डिवाइड करना है और इससे भी डिवाइड करना है तो ये क्या हो जाएगा, log 1 प्लस ji अपॉन ni इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ei. सो log 1 प्लस ji अपॉन ni इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ei. अब इस लॉग को हटाने के लिए दोनों साइड में एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं. सो 1 प्लस जी आई अपॉन एन आई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई. ये आ गया. इस माइनस को आप इधर ले आओ. सो जी आई अपॉन एन आई इज इक्वल टू ई रेज टू अल्फा प्लस बीटा ई आई -1 और यहां से अगर आप एन आई निकालें सो एन आई इज इक्वल टू जी आई अपॉन e raised to alpha plus beta ei -1. तो ni की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी. सो लॉग को हटाने के लिए दोनों साइड में हमने एक्सपोनेंशियल ले लिया. सो 1 प्लस जी अपॉन ni इक्वल टू एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा ei. अब इस माइनस को इधर ले जाओ. सो जी अपॉन ni इक्वल टू एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा ei -1 और यहां से ni क्या आ जाएगा, ni इक्वल टू जी अपॉन एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा ei -1. So ni equal to gi upon exponential alpha plus beta ei -1 and this is distribution formula for Bose-Einstein statistics or this is known as Bose-Einstein distribution formula. So here we end our session. In the current session we have discussed about Bose-Einstein statistics. So if you have any question regarding the Bose-Einstein statistics then you can send your question through comment. So goodbye.